Taking the mercy of Srila Prabhupada, Guru Maharaj and all Vaishnavas. तो हम लोग नॉट ऑफ डिवोशंस का डिस्कशन चल रहा है। हम लोग चैप्टर 32 पढ़े थे ना, चैप्टर 33 में फर्दर फीचर्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव लॉ फॉर कृष्णा ये हो गया था। ये आई थिंक ये 33 हो गया था। चैप्टर वाइज कवर ना, कवर नोबडी नोज। इसलिए मैं उसको फिर पीछे से पढ़ रहा था, इसलिए क्योंकि कहाँ आगे हम जा रहे हैं, कहाँ पीछे जा रहे हैं, कहाँ पे है किसी को मालूम नहीं है। कितना 32 हो गया ना। ओके, चैप्टर 33 चलते हैं। Love, the indirect expression of ecstatic love. The laughter after he had stolen some yogurt from the pots to gopis, Krishna told one of his gopi friend, "My dear beautiful friend, I can take oath that I have not stolen even a drop of yogurt from your pot. But still your friend Radharani is very shamelessly smelling the flavor of my mouth. Kindly forbid her from the devious policy of putting her face near mine." When Krishna was speaking like this, the friends of Radharani could not check their laughter. This is an instance of laughter in ecstatic love. Astonishment. Once Brahma was watching all the cows and cowherd boys dressed in yellow garments and decorated with valuable jewels. The boys were expanding their four arms and were being worshipped by many hundreds of other Brahmas. So all the cowherd boys began to express their joyfulness for being with Krishna, the Supreme Brahman. At that time, Brahma showed his astonishment by examining, exclaiming, "What am I seeing here? This is an instance of astonishment in ecstatic love." तो चतुर्भुज फॉर्म है, इंद्र देख के और सारे ब्रह्मा दूसरा ब्रह्मांड को पूजा करने देख के वो बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। Chivalry. On the bank of Jamuna once there was a crackling sound by dry leaves, giggling from the cowherd boys and thundering from the sky. Sridhama was tightening his belt to fight with Krishna, the conqueror of the demon Agha. This is instance of chivalry in ecstatic love. अगासुर अगस्त्य को वध किया भगवान ने, तो इसलिए the cowherd boys and thundering from the sky. Sridhama Madhumangal is भगवान का फ्रेंड है Sridhama, was tightening his belt to fight with Krishna. Sridhama is the brother of Radharani. Lamentation in the 10th canto, 7th chapter, verse 25. Srimad Bhagavatam, there is a description of Krishna being taken away by the whirlwind. Whirlwind means क्या है? एक जो पवन से घूर्णयमान होता है, इसको बोलते हैं तृणाव्रत, वो जो असुर है. As Krishna was being thus carried up into the sky, वो तृणाव्रत जो है वो कृष्ण को उठा के ले जा रहे थे. All these gopi began to cry aloud. They approached Mother Yashoda, stating that they could not find the son of Nanda. He had been taken away by a whirlwind. This is an instance of lamentation in ecstatic love. Now Krishna was fighting with Kaliya. Mother Yashoda exclaimed, "Krishna is now entrapped within the bonds, hoods of Kaliya's neck, and yet I am not tattered to pieces. So I must admit how wonderful is the preserving power of this material body." This is another instance of lamentation in ecstatic love. Anger. When Jatila, the mother of Abhimanyu, Jatila उनका mother है, कुटिला उनका sister है अभिमन्यु का. So Krishna wearing a necklace. She could understand that the jewel ornament had been given to him by Radharani. She therefore became
observed in anger and began to move her eyebrows, expressing her anger in ecstatic love. Ghastliness. This is a statement by Jamunacharya to this effect. Since I have begun to enjoy these transcendental exchanges of love, which are always newer and newer, whenever I remember the pleasure of past sex life, my lips curl and I wish to spit to the idea. This is an instant of ecstatic love and heartliness. Then dread. One old devotee said, "My dear Lord, when we are away from you, we become so anxious to see you again. There is great misery in our lives. But when we do see you, there immediately comes the fear of separation. Under the circumstances, both when we see you, when we don't see you, we are subjected to different kinds of tribulation. This is an instance of contradictory mixture of ecstatic love for Krishna. Such ecstatic love is palatable, and expert critics have compared such ecstatic love to a mixture of curd, sugar candy, and a little black pepper. The combined taste is very palatable. कंपेयर किया गया है दही का साथ में मिश्री मिला के उसमें थोड़ा ब्लैक पेपर डाल दिया तो इस टाइप का है. Then chapter 34. Chapter 34 में the nectar of devotion. इसमें चैप्टर का नाम है the nectar of devotion. The particular type of ecstatic loving sentiment that develops within the heart of a particular devotee is considered to be vibhava, and the resultant manifestation of such an moving of eyebrows, fear, astonishment, and smiling, which have been explained herein before, are called anubhava. Vibhava, anubhava. Particular type of ecstatic living sentiment that develops within the heart of a devotee, vibhava, and resultant manifestation of such moving of उसका जो external appearance है, eyebrows moving, fear, astonishment, smiling, which is explained, इसको बोलते हैं अनुभव. Different causes of developing anubhava and vibhava are called steady ecstasy or sanchari bhava. Whenever there is a recitation of the poetry or a dramatic play on the different pastimes of Krishna, the audience develop different kinds of transcendental loving service for the Lord. They enjoy different types of vibhava, anubhava, and sanchari bhava. No one, while remaining on the material platform, should discuss these different descriptions of bhava and anubhava by quoting different statements of transcendental literature. Such manifestations are displays of the transcendental pleasure potential of the Lord. One should simply try to understand that on the spiritual platform there are many varieties of reciprocal love. Such loving exchanges should never be considered to be material. In the Mahabharata Udyama Parva, it is warned that things which are inconceivable should not be subjected to arguments. Actually, the transactions of spiritual world are inconceivable to us in our present state of life. Actually, spiritual world को हमारा अभी इस लाइफ में अभी इसी में इस भौतिक दुनिया में रहते हैं उसको जानना बहुत मुश्किल है. Great liberated souls like Rupa Goswami and others have tried to give some hints. कुछ hints देने के लिए Rupa Goswami and other devotees बोले हैं, लेकिन उसको पूरा समझना मुश्किल है. But on the whole, these transactions will remain inconceivable to us at the present moment. Understanding the exchange of transcendental loving service with Krishna is possible only when one is actually in touch with the pleasure potential of the Supreme Lord. In this connection, Sri Rupa Goswami gives an example of the clouds in the sky. The clouds in the sky arise from the ocean, and when the clouds become water again and fall to the ground, they glide back to the ocean. Ocean से आता है फिर ocean में चला जाता है. Thus the pleasure potential of Krishna is compared to the ocean, and the pure devotee is the pleasure possessing cloud, and when he is filled with transcendental loving service, then he can bestow his mercy as a downpour of the rain, and pleasure potential returns to ocean of Krishna. Direct and indirect attraction for Krishna. Transcendental pleasure derived from devotional service can be divided into two groups: direct devotional service and indirect devotional service. Direct devotional service is divided into 5 transcendental humors or flavors, and the indirect devotional service is divided into 7 transcendental humors. Direct service है 5 humor, divided into 5 transcendental humors or flavors. Indirect जो है devotional service 7.
डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस आर एज फॉलोज। न्यूट्रलिटी, जो शांत रस, दास्य रस, न्यूट्रलिटी, सर्विट्यूड, तो ये 5 प्राइमरी रस है, फ्लेवर है, ह्यूमर है, एंड 7 सेकेंडरी रसेस है। तो न्यूट्रलिटी, सर्विट्यूड, fraternity, paternity, conjugal love, and indirect like laughter, compassion, anger, chivalry, dread, astonishment, and ghastliness. ये 7 हास्य रस, compassion, दया रस, anger, and chivalry, वीर रस, dread, astonishment, and ghastliness, भयंकर, विभत्स रस, astonishment. Devotional service can therefore be divided into 12 types. Each of which has a different color. The colors are white, multicolored, orange, red, light green, grey, yellow, whitish, smoky, pink, black, and cloudy. The 12 different kinds of transcendental humors are controlled by different incarnations of God, such as Kapila, Madhava, Upendra, Nrsimha, Nandanandan, Balram, Kurma, Kalki, Raghava, भार्गव, वराह, मत्स्य। ये जो 12 रस को 12 देव कंट्रोलिंग इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड है, जो 12 रस को कंट्रोल करते, उनका अधिष्ठात्री भगवान है। कपिल है, माधव है, उपेंद्र है, नृसिंह है, नंदनंदन है, बलराम है, कुर्म है, कल्की है, राघव है, भार्गव है, वराह है, मत्स्य है। ये तो sustenance, manifestation, expansion, reflection, and lamentation are the 5 visible symptoms in exchanges of this ecstatic love. The test of devotional service can therefore be made in terms of these 5 symptoms. In the devotional service of the neutrality, there is sustenance. In chivalrous devotional service, there is expansion. In compassionate devotional service, there is reflection. In angry devotional service, there is lamentation, and so on. मतलब इसका सस्टेनेंस, मैनिफेस्टेशन, एक्सपेंशन, रिफ्लेक्शन एंड लेमेंटेशन 5 are 5 visual symptoms in exchange of ecstatic love. The test of devotional service can therefore be made in terms of these 5 symptoms. In the devotional service of neutrality, शांतरस में there is sustenance. ये आएगा. In chivalrous devotional service there is expansion. In compassionate devotional service there is reflection. In angry devotional service there is lamentation, and so on. An apparently pitiable condition in devotional service may appear distressing to the inexperienced student, but the feeling of the devotee in this pitiable condition are considered to be ecstatic by expert devotees. For example, the subject matter of the Ramayana is sometimes considered pitiable and distressing to the heart, but actually that is not the fact. Ramayana narrates how Lord Rama was sent to the forest by his father just when he was going to be enthroned. After Lord Rama's departure, Maharaj Dasarath, his father, died. In the forest, his wife Sitadevi was kidnapped by Ravana, and there was a great war. When Sitadevi was finally delivered from the clutches of Ravana, Ravana's whole family and kingdom and Ravana himself were vanquished. When Sitadevi came home, she was tried by fire, and after some days, she was again banished to the forest. All of the subjects to the Ramayana, all of the subjects in the Ramayana seem very pitiable, and they may appear very distressing to the reciter, but actually they are not. Otherwise, why would Hanuman, the great devotee of Lord Ramchandra, read daily about the activities of Lord Ramchandra as described in the Ramayana itself? The fact is that in the above, तो रामचंद्र जी का, भगवान का जो लीला है, भक्त सब समय पढ़ते हैं, तो ये हनुमान तो पूरा थे, फिर भी वो डेली पढ़ते थे, उनका तो इन्वॉल्व थे, फिर भी उसी को वो पढ़ते थे. The fact is that in any of the above mentioned 12 transcendental humors of devotional service, everything is transcendently pleasing. Srila Rupa Goswami mourns in this connection for persons who are in the fire of false renunciation, the dry speculative habits, and who neglect devotional service. Persons who are attached to the ritualistic ceremonies recommended in the Vedas and to the impersonal Brahman cannot release the transcendental pleasure of devotional service. जो मायावादी है या जो ब्रह्मवादी है, निराकारवादी है, ये भगवान का ये रस को आस्वादन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो निराकार का ऊपर विश्वास करते हैं. ये तो रस तो भगवान का आकार के साथ में रिलेशनशिप से होता है.
So the devotees who are already tested nectar of devotion by are very careful to protect devotion service from such dry speculators, formal ritualistic elevationists, and impersonal salvation. Devotees should protect their valuable jewel of spiritual love from the clutches of thieves and burglars. In other words, a pure devotee should not describe devotion service and its different analytical aspects to dry speculators and false enunciations. तो ये भक्ति का ये जो रस है, ये जो मायावादी या स्पेंटर स्पेक्युलेटर उसका बात में नहीं बोलना है. So those who are not devotees can never achieve the benefit of devotional service. For them, the subject of devotional service is always very difficult to understand. Only persons who have dedicated their lives onto the lotus feet of the Supreme Personal Godhead can release the real nectar of the devotion. When one transcends the status of ecstatic love and thus becomes situated in the highest platform of pure goodness, one is understood to have cleansed the heart of all material contamination. In that pure stage of life, one can taste this nectar, and this tasting capacity is technically called rasa or transcendental mood. When one transcends the status of steady love and thus becomes situated on the highest platform of the pure goodness, Shuddha Sattva mein, one is understood to have cleaned the heart. Shuddha Sattva mein आएगा तो no contamination है. तब in that pure stage में life में one can taste this nectar rasa, and this tasting capacity is technically called rasa or transcendental mood. This is the summary study of the second division. Second division of Bhakti Rasamrita Sindhu in the matter of general devotional service. इसमें क्या अभी डिस्कस किएंगे? 5 टाइप का प्राइमरी रस एंड 7 सेकेंडरी रस, टोटल 12 टाइप का रस है. मेलो है जो भगवान के साथ में भक्त जोड़ता है, तो ये इस टाइप का डिफरेंट रस में एंगेज होता है और उसको डिफरेंट टाइप का एक्स्ट्रा लव मिलता है उसको. ये सबको थोड़ा सा समझ में आ रहा है? देन इसका डिटेल में आता है यहाँ पे. न्यूट्रल लव ऑफ गॉड मीन शांत रस का. देन सर्विट्यूड दास्य रस का है. इस टाइप का नेक्स्ट चैप्टर में आता है. तो 35 चैप्टर में न्यूट्रल लव ऑफ गॉड. श्री रूप गोस्वामी offers his respect to prayers to the eternal supreme personal Godhead, which is always beautiful, and for them whom the pure devotees are always engaged in loving transcendental service. This third division of Bhakti Rasamrita Sindhu describes the 5 primary kinds of devotional service, namely neutrality, servitude, fraternity. Fraternity means Vatsalya, parenthood. Fraternity means friendship, conjugal love, madhuras. These 5 items will be very elaborately explained here, and thus they have been figuratively described with the 5 waves on the western side of this ocean of nectar of devotion. nectar of devotion का western side में जो waves है उसको ये 5 waves डिस्कस किया. When one is actually able to maintain the transcendental position, each stage is called neutrality in devotional service. Some great sages have attained this neutral position by practicing austerity, penance, and meditation to control the senses. Such sages are generally called mystic yogis, and in the most cases, they are inclined to appreciate the spiritual pleasure of the impersonal feature of the absolute truth. They are particularly personal contact with Supreme Godhead. Mainly neutrality means mainly वो appreciate करते हैं जो impersonal features को. ये personal features का just beginning है, थोड़ा सा जो personal को आते हैं, लेकिन mainly impersonal features है. Actually the transcendental pleasure derived in association with the Supreme Person is far greater than the pleasure derived from the impersonal Brahman realization. Because of the direct meeting with the eternal form of the Lord,
Impersonalists don't directly derive the transcendental pleasure of the association with Lord by hearing his pastimes. As such, the impersonalist cannot derive any realizable transcendental pleasure from the topics of Bhagavad Gita in which the Lord is personally talking with the Arjuna. The basic principle of that impersonal attitude does not allow them the transcendental pleasures which is realized by a devotee with the basic principles of understanding the Supreme Personality person. The impersonal commentary on Bhagavad Gita is therefore disastrous because without understanding the transcendental pleasure of the Guru, the impersonalist wants to interpret it in this way, in his own way. If an impersonalist can, however, come in contact with a pure devotee, his transcendental position can be changed for greater elevation. Great sages are therefore recommended to worship from the Lord in order to achieve the highest transcendental pleasure. तो ये जो है ये श्लोक ये जो है आप लोग इसको पढ़िए क्योंकि इसको जस्ट हम पढ़ रहे हैं आप लोग सुन रहे पता नहीं है या समझ में नहीं रहे हैं तो ये अभी 5 टाइप का रस का बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है ये वही संत रस का है जैन दास्य रस का ये 5 रस का डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ा जाता है इम्पोर्टेंस प्रोक्यूशन सर्विस इसको पढ़ के आइए फ्रेटर्निटी जस्ट इसको पढ़ना है ना हम लोग को जस्ट खाली पढ़ना है इसको अभी जितना आएगा खाली रस का बारे में है ये लास्ट पार्ट ऑफ दिस भक्ति रसामृत सिंधु में जो डिस्कस किया गया यहाँ पे ये 5 रस एंड इसका डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसको देखना है डिवोशनल सर्विस इन कंजुगल लॉ पेरेंटलहुड अभी हम डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन का क्या बात हुआ था हम लोग अभी उस दिन भी मैं बोला था तो आचार्य प्रभु इसका कुछ क्वेश्चन आंसर करना है नहीं करना है अभी तो भक्ति शास्त्री का टुवर्ड्स एंड है ये भी क्वेश्चन आंसर करके एग्जाम देना था ये और चैप्टर का जो और टॉपिक का वो उसका हुआ नहीं है तो हम लोग कैसे करेगा इसको दोज हु आर इंटरेस्टेड टू टेक द सर्टिफिकेट दे हैव टू स्टडी इनको डिस्कस करके क्वेश्चन आंसर करके देने से हम लोग सेवा ग्रुप से शत्रुघ्न प्रभु से बात जो पहले से किए थे उनको वो बोले थे ठीक है आप इनका एग्जाम करके जो पेपर OBS CBS सब दे के एग्जाम दे देंगे तो देन हो सकता है कि सर्टिफिकेट्स का वहाँ से भक्ति शास्त्री का मिल सकता है तो इसलिए हम लोग तो इसको डिस्कस किया तो मेरा भी दूसरा सेवा ग्रुप में अभी थर्ड मॉड्यूल चल रहा है भगवद गीता का तो कल भी किया था आज भी शाम को कृष्ण विल्स देन विल बी 7:15 में होता है तो वो ग्रुप में भी आप सुन सकते हो थर्ड आज 16 चैप्टर होगा तो कल हमारा 15 चैप्टर तीन क्लास में या 4 क्लास में किए थे हम लोग और 16 चैप्टर से करना है तो एक्चुअली जितना बार हम लोग पढ़ेंगे और जितना बार इसको डिस्कस करेंगे तो अब इसको थोड़ा सा याद आएगा नो शॉर्टकट मेथड्स भगवान डिफरेंट लोगों को डिफरेंट मेमोरी दिया डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग दिया डिफरेंट इंटेलिजेंस दिया लेकिन हमको उसको प्रैक्टिस करने से होगा बहुत कम रेयर लोग एक बार पढ़ के याद रख लेते हैं वो भगवान का अशेष कृपा जिसको इस टाइप का है बहुत रेयर पीपल आर देयर अदरवाइज हम लोग सोचते हैं शायद सबको एक बार में पढ़ने से याद आता है नहीं हम लोग को बार बार पढ़ना पड़ता है उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है और अपने पढ़ते हुए दूसरा को पढ़ाना चाहिए सिखाना चाहिए तभी हमारा रियलाइजेशन कंप्लीट होता है अभी ग्रुप में अभी चल रहा था डिस्कशन वहाँ पे हियरिंग का था इम्पोर्टेंट क्या है तो शत्रुघ्न प्रभु वही बोल रहे थे कि हियरिंग मीन्स कम्प्लीटली हर हियरिंग का कंप्लीट हियरिंग का hearing application then for realizations and then E for elevation and then consciousness elevate हो जाता है spiritual consciousness आ जाता है इसलिए hearing will be effective when we apply it या हम लोग जो सुने उसको लाइफ में अप्लाई करें उसको हम लोग पहले से क्वेश्चन से करें लाइफ में अप्लाई करें देन हमारा लाइफ में अप्लाई करने से ही रियलाइजेशन आएगा क्योंकि हम लोग सपोज एक डिसीजन भी ले सकते हैं कि
हम लोग को लगा अवश्य रक्षियो कृष्ण विश्वास पालन, हम थियोरिटिकली पढ़ लेते हैं कृष्ण जोर क्या करेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम कभी इसी सिचुएशन में आ जाते हैं और भगवान उस टाइम में रियली इन डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो ये बाहर से आके हेल्प कर दिया, तो मतलब तब रियलाइजेशन आता है रियली कृष्णा प्रोटेक्ट्स डिवोटी थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू समबडी। इसलिए हियरिंग का एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन से रियलाइजेशन आएगा, देन आवर कॉन्शियसनेस विल बी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, एलिवेशन होगा। Unless until we hear and also apply in our life, then there will be no realizations and no elevation of consciousness. तो बताइए आचार्य प्रभु कुछ प्लान है इसका? हम लोग 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है जुलाई 2 को। कोई क्वेश्चन आंसर कोई कर रहे हैं क्या? क्वेश्चन दिए थे नहीं दिए थे? हरे कृष्णा। एनीबॉडी वांट्स टू रेज हैंड, जो है इसको हम लोग को भक्ति शास्त्री का कोर्स हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन सर ओबीएससी पे करने से एग्जाम देने से हमको सर्टिफिकेट मिल सकता है, तो एनीबॉडी इंटरेस्टेड टू डू दैट और जस्ट ऐसे ही चलना है। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। एक्चुअली सर बहुत आगुरी आमर सब डिस्कशन भी है क्वेश्चन आंसर आचार्य प्रभु श्याम कृष्ण प्रभु क्वेश्चन आंसर भी आई नो दैट इज वेरी लेस 4-5 चैप्टर या 6 चैप्टर भगवद गीता किए थे और उसका दूसरा कुछ नहीं हुआ है ना, तापरे वो भी पुराना रह गया। उसका सबको इसको पढ़े नहीं है, सबको इसको डिस्कस नहीं किए थे, सब जो किए थे उसका भूल गए वो लोग, दोबारा उसको रिवाइव करिए। आपण जेमती कहले माने क्वेश्चन तो शेयर कर दिए ना पूरा। आउथरे पुणी सेमती डिस्कस कल क्वेश्चन बैंक है ना आपका पास में, आपको शेयर किए थे ना, ग्रुप में शेयर किए थे क्वेश्चन बैंक्स, सबका पास में है, ग्रुप में आया था ना उस टाइम में दिए थे, आचार्य प्रभु दिए थे। हाँ नहीं तो हाँ श्याम कृष्ण प्रभु अभी ज्वाइन कर लिए। क्या क्वेश्चन आंसर का क्या चल रहा है, कुछ चार्जेस? सर क्वेश्चन आंसर एक्चुअली आमे जो परीक्षा के लास्ट में करथिलु तो ओनली 2 जण ही तादरे माने इंटरेस्टेड हेतिले परीक्षा देतिले, तो बाकी आई थिंक माने शास्त्री कोर्स करिबा बा तादरे एटा को एग्जाम भेलिया पढिबा बा तादरे ये दबारे सेमिति एक्चुअली जो माने इंटरेस्टेड हेबे से माने ही माने तादरे ये कर माने परीक्षा दबा को कि ये करे इंटरेस्टेड होउछंती, बाकी समस्त शुणिया को चाहूछंती किंतु एग्जाम दबा सेटा तो किए इंटरेस्ट अछंती एग्जाम दबा मोड रे और सर्टिफिकेट न मोड रे पचरंतु से अनको तांकर क्वेश्चन करंतु, डिस्कस करंतु, अन्ना जॉइन कर परियो क्वेश्चन आंसर रे, बट अदरवाइज हमें तांकर ये करिकि तांको परीक्षा दे करया पड़ियो ओटे ठीक जोटा पढ़ा हला 1 ईयर एटा फक्त 1 ईयर कोन एटा तो कहउतले ना इक्विवेलेंट टू 2 इयर्स या 3 इयर्स कोर्स हो गया कहीं कि ना। रामकृष्ण प्रभु तो बोल यू कैन टेल दूसरा जगह में भक्ति शास्त्री कितना दिन में कर रहे हैं और वीकली कितना क्लास कर रहे हैं? एक्चुअली ऑफिशियली लिखा है 400 घंटा, आई थिंक 400 आवर्स, लेकिन बहुत लोग 400 नहीं 200 घंटा में कर देते हैं, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट 600 आवर्स किया होगा, क्योंकि 365 डेज अगर होता है और डेली तो 1.5 घंटा डिस्कशन होता है, तो अराउंड 500 प्लस आवर्स हम लोग किया, जो कि रिकमेंडेड से भी ज्यादा है टाइमिंग, इतना टाइम हम लोग दिया है ऑनेस्टली। इज इट क्लियर और नॉट? कितना घंटा में करते हैं दूसरे लोग तो बहुत कम करते हैं, 400 घंटा तो वहां पे लिखा था आई थिंक के लिए 400 आवर्स, वो 400 आवर्स भी लोग नहीं करते हैं।
आपका कितना घंटा हुआ था श्याम कृष्ण प्रभु? आपका शायद ज्यादा हुआ होगा, लेकिन वो जो गुंडीचा प्रभु का जो ग्रुप में गोविंद देव का प्रभु में वो कितना 6 महीना में कर दिए थे। आई थिंक आचार्य प्रभु कैन टेल 6 months ना, दैट टू डेली टू वीकली ट्वाइस या मैक्सिमम थ्राइस, है ना? आचार्य प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उनका तो शाम को हम रोज 7:30 से 9:15 ऐसा, तो 6 महीने में तो हो जाएगा। नहीं, डेली नहीं किए थे ना, वीकली थ्राइस आई थिंक 3 days या 2 days या कितना दिन किए थे? डेली पता था? डेली होगा 6 महीना में अगर किए। हमारा तो एक साल से कर रहे हैं हम, मतलब डबल टाइम दे रहे हैं हम लोग। डेली आई थिंक सैटरडे संडे नहीं होता था। डेली होगा कहाँ? वो कहाँ पे डेली 7 days कहाँ किए थे वो? आप लोग 7 days क्लास हो रहा क्या? होता आमर सर 2 दिन सर, आमर खाली सैटरडे संडे वीकली 2 days। हैं? आमर सर वीकली 2 days 61 तो क्लास रो 61 क्लास रे सरला। एबे ही 61 क्लास रे। हाँ एबे जस्ट सरला 6 तारीख ना के गला 61 आ तो गोटे 61 क्लास रे वीकली 2 days मैं टोटल 61 क्लासेस ना? टोटल 61 क्या है? आगे सर टोटल 61 तो क्लास 61 into 2 hours अपने मैक्सिमम लेते हैं। हाँ तो 122 hours 120 घंटा में हम तो 500 घंटा पढ़ा रहे हैं, उसका 4 गुना ज्यादा है। तो फिर उसको कोई रिसीव नहीं करता है तो फिर हम लोग को एनकरेज कैसे लगेगा? हमर या भितरे I will be encouraged। सब उत्सव सब गुड़ा डिस्कस होई तो तण अधिक होई जाई सब ब्रीफली डिस्कस होई सब। हाँ हो उत्सव केते आउची हो? उत्सव गले भी अपन फॉरेन आवर्स ऊपर हम डिस्कस करछु। फॉरेन आवर्स मतलब पहले अप्रिशिएट करिए कि दूसरा जहां पढ़ाते हैं उससे मिनिमम बहुत ज्यादा पढ़ा गया है, ये अप्रिशिएट करना। कितना अमाउंट छोड़िए, आप आर्गुमेंट करिए न करना छोड़ दीजिए। उत्सव का कितना घंटा उत्सव दिया है? और उत्सव गया भी कितना हुआ? तो मेरा कहना कि डेली कर रहे हैं ना आप 61 क्लासेस से आप अगर 360 क्लासेस किया, उसका उत्सव का अगर 60 क्लास छोड़ दो 300 होगा ना, 300 हुआ तो 60 into 5 गुना क्लास किया। और कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपका? 365 से अगर अभी जुलाई 2 में हो जाएगा, अगर 60 से भी इवन 2 महीना आप ले लो, अगर दूसरा डिस्कशन हुआ 2 महीना भी तो हुआ नहीं कोई ऐसे उत्सव के बारे में, फिर भी हम अगर ले लेते हैं फिर 300 days डेली अगर आप मोर देन 1.5 hour करीब होता है, 450 आवर्स तो कर लिया, जबकि 120 आवर्स है। तो कंपेयर करो 120 आवर्स और 450 आवर्स कितना गुना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 4 times। पहले अप्रिशिएट करो क्या आपको मिल रहा है, वो अप्रिशिएट नहीं करते हो। दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ दैट यू विल नॉट एबल टू रिसीव व्हाट वी आर गेटिंग। जो जा रहा है उसको रिसीव करने के लिए मूड में नहीं है लोग। पहले ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, पहले मूड में आना चाहिए कि हम यहाँ पे जो सुना काफी ज्यादा गुण में सुना, ये मैं बोलने के लिए चाह रहा हूँ, पीपल आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट इट। तो फिर कैसे होगा? तो बोलना नहीं चाहिए, फिर हमको खोल के बोलना पड़ रहा है? ऐसा कैसे होगा? कैसे होगा? फिर हम दूसरा क्लास में भी ज्वाइन करते हैं तो लोग को बोलते हैं ज्वाइन करने। एनीवे इट इज अप टू, मेरा सेवा है, मैं कर रहा हूँ, आपका ऊपर में डिपेंड करता है वेदर यू अप्रिशिएट इट और वेदर यू वांट टू रिसीव इट और यू वांट टू थ्रो इट अवे, ये आपका ऊपर में है। या एक जैसे आज प्रभु बोले ना, हरे मीन्स हियरिंग का पहले एच फिर हियरिंग, ए फॉर एप्लीकेशन, देन बोले आर फॉर रियलाइजेशन, देन ई फॉर एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। हम जो सुन रहे हैं उसको अप्लाई कर नहीं रहे। अप्लाई मीन्स पहले तो पढ़ना पड़ेगा एंड उसको थोड़ा सा अच्छा से समझना पड़ेगा। डाउट है तो क्लियर करना है, क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा, देन अपना लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। ये सब प्रोसेस है। हम लोग एक श्लोक कभी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, उस श्लोक कभी भूलेंगे नहीं।
हमारे टीचर बोलते हैं आप श्लोक को कैसे याद करोगे, नॉट बाई मगिंग अप बट अप्लाइंग इन आवर लाइफ. इफ यू अप्लाई दिस श्लोक इन योर लाइफ then only you will be able to realize or you will be able to remember that shloka. ऐसा है बोले हैं. हम लोग तो ट्राई करें मगअप करने के लिए, ठीक है, एक श्लोक दो श्लोक. इसमें भी है, यू हैव टू लर्न एंड रिसाइट विदाउट सीइंग द बुक्स द श्लोकोज एंड उसका परपोर्ट, उसका ट्रांसलेशन. कितना श्लोक इसमें होना चाहिए भक्ति शास्त्री में? मोर देन 50 आई थिंक, या कितना है उस श्लोक का दिया है 45 प्रभु जी. तो 45 श्लोक सबको दीजिए, ये लोग रिसाइट करेंगे और बताएंगे मीनिंग और विदाउट दिस थिंग्स. क्योंकि एग्जाम नहीं होगा तो लोग पढ़ते नहीं, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम इज देयर. हम लोग पढ़ते हैं क्या? इसका बाद में ये जो खत्म हो गया पढ़ाई, इतना हो गया, कौन ऑनेस्टली बोलेगा कि हम उसका रिपीट किया है कभी, कितना बार और कितना परसेंटेज रिपीट किया? 100% अभी जितना पढ़ाई को अगर 100% लेते हैं, हाउ मच परसेंटेज ऑफ दैट पढ़ाई हम लोग दोबारा पढ़े हैं, जो पढ़ा दिया गया, कितना परसेंटेज कौन पढ़ा है? ऑनेस्टली फीडबैक दे सकते हैं? हम अगर 500 घंटा पढ़ा, इधर डिस्कस हुआ, हाँ, तो पर्सनली कोई कितना घंटा पढ़ा है उस 500 घंटा को, जो भी पढ़ाई हुआ? 50 घंटा पढ़ा कोई? 1/10, 1/20? क्या है? ये तो बढ़िया है कि वीडियो ऑफ कर दो और कुछ बोलते जाओ, कोई भी उसका रिप्लाई नहीं दो, बस बढ़िया है. वी आर इन इसमें चलता है, बढ़िया है. इसलिए बोला था वीडियो ऑन करने के लिए. कब? इसीलिए रिसीव नहीं होगा, ये जो नॉलेज है ना, ये रिसीव नहीं होगा क्योंकि हम लोग रिसीविंग मूड में नहीं है. कैसे होगा? गुड दैट हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं. हमारे प्रभु जितना बार क्लास अभी दिया, थोड़ा वीडियो ऑन करके बताइए. वही है, इस दिन भी, उस दिन जो हमारा इधर क्लास हुआ था, प्रभु दिया था, उसमें हम जो बोला था उसमें कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन या रिकमेंडेशन हम लोग को दिया. और हर क्लास में वो सेम चीज को, कॉमन चीज एक देते हैं और एक्स्ट्रा जो देते हैं, लेकिन कॉमन चीज एक देते हैं. एंड कोई इसको सुना था? कोई बता सकते हैं हर क्लास में क्या देते हैं? प्रभु जब एक प्रोग्राम होता है हम लोग का जो ग्रुप में, कभी हर ग्रुप में एक बार प्रोग्राम में, हर एक प्रोग्राम में एक चीज देते हैं. अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो 9:30 बजे आज प्रभु को फोन करिए, 9 बजे का बाद में, और प्रभु को पूछिए, प्रभु आप क्या चाहते हैं हम लोग से या हमसे स्पेसिफिकली. एक चीज आप पूछिए. अगर हम उनको गाइड मानते हैं और उनका गाइडेंस में हम ये क्लास भी कर रहे हैं, तो हम लोग को इंडिविजुअली पूछना चाहिए, प्रभु आप क्या चाहते हैं, ये जो क्लास के माध्यम से या जो भी है, आप क्या चाहते हैं हमसे? अगर समझ में नहीं आ रहा है किसी को, क्योंकि प्रभु तो ओपनली भी क्लास में बोलते हैं, उसका बाद में भी अगर समझ नहीं आता है, मेरा ये सिंसियर रिक्वेस्ट है, क्योंकि तद्विधि प्रणिपातना परिप्रश्न सेवा, प्रश्न करना पड़ेगा सरेंडर मूड में कि हमको क्या करना है. देन वो बोलेंगे तो उसी को सेवा हिसाब से लेना है. एनीबॉडी कैन टेल, एवरीबॉडी नोज, बट आई डोंट नो. जो ठीक है, मित्राणी माता जी तो ज्वाइन नहीं किए क्लास उनका, अदरवाइज मैक्सिमम पीपल हैव अटेंडेड डिफरेंट क्लासेस ऑफ हिम एट डिफरेंट टाइम हमारा ग्रुप में. तो क्या बोलते हैं उसमें, उनका क्या डिजायर है, कोई बोल सकता है? नहीं? प्रदीप प्रभु, हरे कृष्णा. मेरा सेवा अभी 1 साल के लिए अभी हो रहा है, तो इसी. हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रभु. प्रभु ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତ ତାର ସହିତ ମୁଁ ତ କଣ ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ. ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଫୋନ କରନ୍ତୁ. ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 9ଟା ପରେ ଫୋନ କରିବେ. Individually I am requesting everybody to call if you are not able to understand what Prabhu is telling. तो कोई फायदा नहीं होता है. आप कॉल करके उनको पूछिए वो क्या चाह रहे हैं और उसी को करिए, तभी हम भक्ति रास्ते में बढ़ सकते. नहीं सकते. अगर आप उनको गाइड मानते हैं, अगर नहीं मानते छोड़ दीजिए, फिर डोंट आस्क. आप जिसको गाइड मानते हैं या आपका कोई लाइफ में कोई दूसरा गाइड है तो उनको पूछिए.
अगर किसी को जो भी किसी को गाइड मानता है तो उनको पूछना है कि प्रभु आप, मैं आपका क्लास सुनता हूँ लेकिन उसमें मेरे को समझ में नहीं आया कि आप मेरे से क्या चाहते हैं। ये तो अद्वितीय प्रणिपातना परिप्रश्न सेवा ये प्रोसेस है। तो जाके पहले प्रणाम करके, जैसे बोलते हैं फोन में प्रणाम कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। हम जाना तो बहुत दूर है, टाइम नहीं निकलता है, इतना दूर कौन जाएगा, कोई बात नहीं है। नहीं तो टाइम है तो जाके फिजिकली भी मिलिए और बात करिए। प्रभु तो अभी है, फोन करके प्रभु कब हमको टाइम मिलेगा, अगर चाहते हैं जाने के फिजिकली, अदरवाइज ऑल्सो यू कैन कॉल इन ओवर फोन। प्रभु हमको एक ही क्वेश्चन का आंसर चाहिए, प्रभु आप हमसे क्या चाह रहे हैं, हम कैसे सेवा कर सकते हैं, ये पूछना है। आई एम ए सेवक, अब मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ। आपका मतलब भगवान का है, उनका सेवा क्या है, तो ये पूछना है। सेकंड छोड़िए, नेक्स्ट शुद्धापा प्रभु, व्हाट यू हैव फेल्ट। हम लोग इसी से पता चलता है कितना इंटेलिजेंट है, उससे पता चल जाता है। ठीक है, इंटेलिजेंट नहीं है कोई बात नहीं है, उसको फोन करके पूछिए शुद्धापा प्रभु आपको क्या समझ में आया है, अभी तक जितना क्लास प्रभु का सुने हैं, हमारा ग्रुप में कभी क्लास देते हैं प्रभु, बताइए। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम। प्रभु ମୁଁ ସାର୍ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ତ ଶୁଣିନି, କିଛି କିଛି ଏ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କର, ଏ ଯେଉଁ କାମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ करो। ठीक है, वो आप भी फोन करके आज समझ लीजिए, वो नहीं बोल रहे, आप आज आप कुछ नहीं सुना है, सॉरी टू से, या आप समझा नहीं है, आप पूछ लीजिए उनको फोन करके डायरेक्टली, अकेले, या जाके बात करिए, नहीं तो फोन कर लीजिए, सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है। किसी का टाइम नहीं है किसी को मिलने के लिए, लेकिन बात कर लीजिए, प्रभु हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे लाइफ में मैं भक्ति में बढ़ना चाहता हूँ, तो आप बताइए मेरे को पहला कौन सा पॉइंट, एक पॉइंट बताइए, ओनली वन पॉइंट है जो कि बताइए, उसको हम करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो क्वेश्चन करिए, अगर नहीं करना चाहते तो मत क्वेश्चन करिए। ये मना किया गया, प्रोसेस में नहीं है। प्रणिपातना परिप्रश्न सेवा है, उसमें बोला कि सेवा करना है तो क्वेश्चन करिए, अगर सेवा नहीं करना है मत करिए। बट फिर भी अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछना है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट है एनीबॉडी एल्स, पद्मावती माता जी। ये भी बोल दिया लेकिन कोई नहीं करेंगे, मैं बोल दिया, ये मैं कह दिया, हाउ मेनी पीपल विल फॉलो आई डोंट नो, बट एनीवे क्यों मैं जानता हूँ ये लोगों को सबको। पद्मावती माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। सर प्रभु जो कथारे रियलाइज करे, प्रभु कहते जे आपण मैंने एक्टिव हूँ, आपण पछरे माने आजिकल लोकों पछरे भक्त माने भगवान को कथा शुणा पछरे पड़ा पड़ी, निज आडू भगवान कथा को आग्रह करिया माने निज आडू जागृत होबा उचित, कोऑपरेट करिया कथा। मटेरियल बंधन विषय कहती जे मटेरियल बंधन एते बांधी रखुची हमको जे आमे से मोह भितर पसिकी बाहरी पारुनु। भगवान चाहूछंती हमको कृपा करेको, किंतु आमे रिसीव करूनु। ए रियलाइजेशन। ओके, थैंक यू। चित्त प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। अम्बा प्रभुंकर मु तो बेसी क्लास करनी, किंतु आपनक क्लास बहुत माने माने सुनिछि। आ मु जति अनुभव मोर जो क्लास आपण जो लहु दोइछंती, आपण जो परिश्रम करिछंती, आमे सेतिरे संपूर्ण उत्तीर्ण हेई पारुनु, काइना हमर से जो प्रचेष्टा, आपणकर जो प्रचेष्टा अछि क्लास सेटा रिपीट करे पढ़ा, ये आमे ताकू सीरियस नंबा, हमर सिंसियरिटी एंड लेबर जोडा हमर पढ़िया कथा जोडा आमे करूनु, सेति पई सेटा धीरे धीरे विस्मृत हो जाउछि। किंतु आपण तरफ बहुत प्रचेष्टा करिसंती, से दृष्टि आम पहले गोटार किसी
କିଛି ସଫଳ ବିଫଳ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ତାକୁ ଆମେ ଫର୍ଦର ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁନୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ କେମିତି ଆମେ ଅଧିକ ନିୟୋଜିତ ହେବୁ। ଭକ୍ତି ମାନେ ଆମେ କହିଛନ୍ତି ସେବା, ଆମେ ସେବା ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିବା ସେ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ଆସିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଫର୍ଦର ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଯୋଡି ହେଇକି ନ ରହିବା ସାଧୁ ସାଙ୍ଗରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବୁ। ଆଉ ସବୁ ବହୁତ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ କଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହୁଏ। ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ତା ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ କେସରେ ହେଇପାରେ, ଆପଣ ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛିଟା ଆପଣ କମ ପରିଶ୍ରମ ପଡିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ପରିଶ୍ରମ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଭଗବାନ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଦେଖୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରୁନୁ, ଆମର ଉନ୍ନତି ହେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଟା ସେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଯାହା ଯେ ପର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଉ ବର୍ଷେ ହବ କ୍ଲାସ ଅବିରତ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା କି ରବିବାର ସୋମବାର ରବିବାର ଶନିବାର ବି ହେଇପାରୁନଥିଲା ମଝିରେ ମଝିରେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଉ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁ ଅବିରତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ କମ କ୍ଲାସ ଏମିତି ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ହେବ, ଆସିବ। କାହିଁକିନା ସେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର କେତେ ମୂଲ୍ୟ। ସେଥିରୁ ଆମେ ଏତିକି କହିପାରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ହବା କଥା ଯେହେତୁ ଆମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହୁନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। थैंक यू। श्याम कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण सर। सर ସେଇ କଥା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଯାହା ବି ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଏବେ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଡେଲି ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ इट इज ए मिराकल टाइप ऑफ थिंग। अद्भुत ये है कि जो सिंसियरिटी और सीरियसनेस रो एटा हला एग्जांपल आपन जो ये रे क्लास रो जो सिंसियरिटी रे आपन एटा फोर्स जो अछि, प्योरिटी इज द फोर्स, आपन सेटा को कंटिन्यू करि पारचंदी, सेटा दायित्व आपन को देर से प्योरिटी अछि बोली। तेणु बाकी रहला जो पार्टिसिपेंट मानकर जो डेवलपमेंट बा कोर्स करिबा बा अंडरस्टैंडिंग, तो सेटा इंडिविजुअल ऊपर डिपेंड करछ। मु का ऊपर किछ कहि परिबिनी, तो किंतु सेमति कि से कहले जे जति कि आसिया तो सेति कि न आसले भी बहुत आसी जी, तो सिंसियर हिचंती, प्रोग्राम सब बढ़ी छी, एई क्लास माध्यम रे ही बहुत नुवा डिवोटी जोड़ी चंती एवं तांकर श्रद्धा बढ़ी छी, तांकर सीरियसनेस बढ़ी छी, तांकर सिंसियरिटी बढ़ी छी, जप से मानकर बढ़ी छी। न्यू डिवोटी जो कि पूरा ब्लैंक जीरो रु आछंती, से माने बहुत आगु को जाई परचंती एई जो क्लास शुणी शुणी का बा श्रवण माध्यम रे। तेणु फल बहुत अनलिमिटेड फल अछि, आ से सब जाकर श्रेय आपनको जाउची, काहे ना आपण ही आपनकर प्योरिटी माध्यम रे सेटा को प्रतिपेत करते। नले डेली क्लास करिवा आ टॉपिक रु कहिबा इट इज इम्पॉसिबल, सेति कि माने लेवल रो ज्ञान रियलाइजेशन आ सीरियसनेस नथिले सेटा असंभव। सेति पय आपनको माने आई हैव नो वर्ड्स टू टेल, काहे ना मो पाखरे शब्दर अभाव अछि, मु सेटा कहि परिबिनी। तेणु बा कहिबी जदि इनसफिशिएंट हबो, जोटा कि ठीक भी नुहे, सेतका से शब्दर अभाव बोली कहूची। दैट इज माने समस्त सेटा को कि को मात्रा अनुभव करि परछि कि न करि परछि, किंतु दैट इज टोटली इम्पॉसिबल टाइप ऑफ थिंग, जोटा कि सेही लेवल रो जणे
साधु जे कि निजको सही लेवल रे को नहीं पारचंती सी ही सही लेवल रो कथा ही कहि परिबे तो से निश्चित भाव एक्सपेक्टेशन टा शेयर रहइबो जे ए कथा करिया कथा कि ए लेवल को आसिया कथा कि आमे एते परिश्रम कर तार रिजल्ट मान जदी जो मानु को आमे क्लास करूचे बा जो माने जोडुचंती से मानकर जदी सन जदी बहुत माने जो कथा कुहाई जे से मान सब मेमोराइज कर देले बा सेही परि से मानकर आचरण परिवर्तन आसी गला बा जोटा कि एक्सपेक्टेड जोटा कि गोटे पचा माने कांसेप्ट जोटा कि स्पिरिचुअल कांसेप्ट ऊपर से माने क्लियर अछंती तो से कांसेप्ट तो कुहाई जे तो सही कथा होउची जे कि केते रेगुलर क्लास तो होउची अटेंड कि केते करूची कि केते सीरियसली सुनुची को मोड रे सुनुची तो ता ऊपरे भी बहुत कथा रहउची किंतु क्लास चली छी समस्त जोडुचली सेत में समस्त बहुत बहुत धन्यवाद जे समस्त जॉइन करूचंदी किंतु जमती कि हमर किछि डिवोटी जॉइन करचंदी तापर किछि दिन पुनी धर गैप हेला से माने पुनी ब्लैंक हेले पुनी तांको जीरो रु आछंदी ए भलिया प्लस आर मोर नेगेटिव आर लेस किंतु सेत में आपनको जो येटा रही छी जे जो मात्रा हवा कथा एक्सपेक्टेशन अनुसार होउनी दैट इज ये तापरे आउ रहला बाकी अमाय प्रभु से कथा जे जे प्रभु तो सब से कथा कहती जे आप माने सेक्शन भी कहिथिले जे समस्त मॉर्निंग क्लास जॉइन करंतु आउ जहाँ बास्के मैडम भी श्रवण करचन से भी हिंट्स देथिले जे somebody is before you से आपन पछरे अछंत आपन तांको पछरे जानतु आपन केथर तांको भी ये करचंती डाकिचंती कि जाइचंती कि जे भलिया माने अप्रोच टा गोटे आडुन होय कि नेक्स्ट आडु भी हवा दरकार तो तांको तो यू शुड ऑलवेज इन डिवोटी एसोसिएशन रहंतु आउ जो भी अछि आपन तांकर एसोसिएशन रही कि गाइडेंस रे करंतु आउ जोड़ी की रुहंतु बाकी रहला सिंसियरिटी बढ़ांतु समस्ते आउ एई सब जाके एनकरेजमेंट वर्ड्स से सब बेले सेटा दियंती आउ सार को सहित जोड़ी के रहया पई आउ साधु संग रे रहंतु आउ एई सब कथा आउ भगवान को सेवा भक्तवान को सेवा भक्तवान कौन चाहउचंदी सेटा आगे बुझिकी तापर आम भगवान को सेवा तो करिपारियानी भक्त मान सेवा करिबा आमे तांको हेल्प करिया तो से कौन चाहूचंदी तो एई भली भाव रे रहिछि बहुत जिंस रियलाइजेशन करियार अछि आगु कावरी बहुत रहिछि मोर तो लेवल कम अछि तो मु जति के अंडरस्टैंडिंग अछि तो मु सही सारे कहबी किंतु क्लास रे जो प्रयास कथा रहिछि प्रयास इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो डिपेंड करछि जे को जगह रे सेटा डिलीवर करा होछि तो इफ हम जदी एनवायरनमेंट एमती करदा सार सेपटे भक्ति शास्त्री कोर्स से माने जॉइन करूचंदी से माने से सीरियसनेस रे सुनुचंदी काहे से माने सर्टिफिकेट दरकार से माने सेटा कमिट करि के हमकु माइंड मेकअप करि जे हमें भक्ति शास्त्री कोर्स करछु हमकु सर्टिफिकेट दरकार हम एटा जाने दरकार हम एटा परीक्षा देबु तो तांकर मोटिव टा तांकर जो इंटेंशन टा दैट इज डिफरेंट तो से माने सेट पे से सीरियसनेस रे सेपटे जो क्लास होछ माने किंतु दिस इज तो जेतु इनिशियली जे भी आछि हमकु जे क्लास जॉइन करंतु से सुनिले तापरे से तांकर से सीरियसनेस ये आसुनी जे मु गोटे कोर्स करछि बा मु गोटे सर्टिफिकेट पा दरकार मु नॉलेज टा मेमोराइज करे दरकार जाने दरकार एटा सब शास्त्र कथा तन शास्त्र साधु शास्त्र गुरु को गाइडेंस रे सब करे दरकार तन से टिके डिफरेंस रहि होउची माने सेठी जो माने करूचंती से माने दे आर कमिटेड दे से माने द प्रिलिमिनरी माने तांकर येडा सरी जाईची तो से माने चाहउचंती बा कोर्स करिया सो दैट इज द मोड रे टिके मोटिव रे टिके डिफरेंस रहि होउची तो एठी तो कि केबे क्यों क्लास जॉइन करछि कि कोटा करिनी कि जेतु डेली होउची समस्त कंप्लेसेंट भी अछन हां डेली तो होउची तो सेही भीतर भी टिके डिफरेंस बहुत ही रहि जाउतो मु जा भाबुची बाकी आई मे नॉट बी करेक्ट तो बाकी रहिला जो क्लास कथा दैट इज इनक्रेडिबल माने ता विषय आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन थैंक यू सर हरे कृष्ण थैंक यू लास्ट ईयर भी हमरो जो तांकर गोटे सेवा ग्रुप प्रथम 24 जन को हेतिला तो डेफिनेटली बहुत थिला बट लास्ट को मात्र 4 जन गोटे क्लास करछंती प्रभु सिंस 1 ईयर आल्सो सत्र दो से क्लास को डिफरेंट डिवोटी को दे करोचंती सेवा हिसाब रे तो लास्ट तांकर भी अगस्त 1 को दूसरा थर्ड ग्रुप स्टार्ट हो तो वन ग्रुप 1 ईयर सेकंड ग्रुप इज ओनली 4 पीपल फॉर डिवोटीज
देयर आल्सो 4 जन को भी प्रभु पूरा क्लास टा कर तो मु सेतरे बे करूचे बे थर्ड मॉड्यूल टा तागुरी से पुनश्चर्या करथिली एवं एबे गीतार थर्ड मॉड्यूल से 13 टू 18 मु मोआडू तांको लिखली तो मोर संसारे भी टाइम वेस्ट हो जाउतला मु तांको लिखली मु आई वांट टू डू ठीक अछि प्रभु कहले आई वाज थिंकिंग टू टेल यू बट यू आर सो मच ओवरलोडेड बिजी I was not daring to ask you but in the heart I was asking thinking that you should take this the class so thank that you inspired you and you expressed that you want to take to the class तो मो यारी भितरे सब समय भितर तांको कोइ एडजस्ट करिया पई सब सप्ताह 3 दिन 4 दिन 2 दिन के करछि करिकि वर्तमान 13 14 15 चैप्टर काली सरला तीनटा चैप्टर एवं हर चैप्टर को अराउंड 4 क्लासेस फर्स्ट ओवरव्यू तापरे एटा छोटे छोटे चैप्टर काली जो श्लोक थिला 15 चैप्टर मात्र 20 टा श्लोक 14 चैप्टर मात्र 27 टा श्लोक सो लाइक दिस दीज आर नॉट अ बिग चैप्टर्स ये श्लोक संख्या कम अछि तथापि हमें अराउंड 3टा चैप्टर 3टा क्लास को 3टा को 12टा ये रे 7टा 15 रु 8टा 45 डेढ़ घंटा समटाइम्स 9 o'clock देखि हमें डिस्कस करू तो थिंक दैट दे आर आल्सो न्यू एंड सेमन जो अछंती सेमन भी टोटली न्यू है जणे तो 6 मास वर्ष भीतर जो कोचिंग से जॉइन करी क्लास करछन एबला सब अछंती कई पुराना एते ना क्षेत्र ऑल आर मोस्टली न्यू बट दे आर आल्सो इंटरेस्टेड दैट आई हैव टू डू दिस क्लास एंड आई हैव टू लेखिबी क्लास देबी प्रभु ता पछे पड़छन प्रति सप्ताह रे कि 15 दिन गोटे परीक्षा करछन ताकर जो हवा कथा शेड्यूल अनुसार जा फल कि ता सीरियसनेस अछि हमें जेतु मझरे परीक्षा करलेनी काट देले एवं रही गला क्वेश्चन आंसर करलेनी तो रही गला ताको टिके टाइम बाहर करी करिया पड़ियो सैटरडे संडे में कहली इवनिंग टाइम रे भी पीपल ऑफ टाइम अच्छी ताको जो वन इंटरेस्टेड तांकर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करा जाई पारे तो दैट आल्सो कैन बी डन आचार्य प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण दल प्रणाम टू ऑल डिवोटीज ऑलमोस्ट श्याम कृष्ण प्रभु आमर क्लास चलुची ता विषय रे पुंखानुपुंख विस्तृत आलोचना रखिछन्ति मुझे विषय रे अधिक किसी कहबा चाहिए मैंने होची जे प्रथमे आमे जो माने आसी क्लास रे जॉइन कले से माने कंप्लीटली न्यूफाइट्स तो से समय रे से मानकर उद्देश्यटा क्लियर न होइतिबारु सेमानकर प्रथम प्रायोरिटी रहला केवल क्लास अटेंड करवा किसी लोग सिंसियरली अटेंड कले किसी कैजुअली किसी मझरे मझरे बंद करदेले पुणी आसिले पुणी बंद कले रेगुलर बट क्लास तो रेगुलरली होची जोटा कि ता विषय रे कोनसी क्वेश्चन ही परि हबनी ता पय प्रयास जा रही आपनकर स्कत अतुलनीय तापर कौन सी डाउट है नहीं बट रहिला जे भक्ति शास्त्री पई जो एफर्ट दरकार बा जो सिंसियरिटी दरकार बा मन रे जोटा रहिया कथा गोटे माने प्रतिश्रुति बद्ध होई करिया कथा जे हां एटा हमें करले एटा तो बहुत भलो होची एतरे हमें बहुत जिनस सुनुचु बारंबार सुनुचु केवल क्लास को सिंसियरली अटेंड करिले सुनिले हमें आराम से क्वेश्चन आंसर सब कर दे पारिबा या पई हमर एते डिटेल्स पढ़ाई छी जे जोतरे की आउ अधिकार न पढ़ी की भी माने परीक्षा देई हबो किंतु जहां मोर पर्सनल अनुभूति क्लास रे समस्त पूरा सिंसियरली सुनु ना यदि पूरा सिंसियर है कि सुनते ताले ताको निश्चय भल लागता कंटिन्यूटी रहंता सेटा रहउनी सेति पई विस्मरण होई जाउची आपण जोटा कहले एटा निश्चित जे उत्साह हमको लागिबाटा जो माने क्लास अटेंड कर समान को ऊपर निर्भर करे आम निज ऊपर जति निर्भर न करे जो माने क्लास अटेंड करूचंती समान को ऊपर बेसी निर्भर करे परीक्षा जो भी कराई थिला सेटा को बारंबार क्वेश्चन डिस्कशन करके रिपीट करके क्वेश्चन डिस्कशन करके तथापि करा हला जो माने अटेंड करि थांते परीक्षा से माने प्रायतः समस्ते
पास मार्क रु बहुत अधिक रखी पारि थांते किंतु परीक्षा ही देले ना एनकरेजमेंट भी आम मानकर उणा अस्वीकार कर कौन विधा ना टमाटोर प्रचेषा तो माने आमे आम चिंतार बाहर से जो लेवल कैरी आउट करने चाहती भगवत धाम को सहित नहीं जा चाहती सी जो तांकर इच्छा से इच्छा को आमे केते सम्मान दउचंती आमे केते तांको फॉलो करचंती बा तांको केते चिंता करचंती हार्ट रे सेटा हमरो ऊपर निर्भर करछु तो आमे सिंसियरिटी कथा जोटा चाहउचंती प्रभु से सिंसियरिटी ता हम पात्र रहुनी प्रभु चाहउचंती जे भक्ति मार्ग गोटे मार्ग जो दृश्य किसी पाइछन तेणु से कृपण न होगी समस्त को अजाचित भाव वितरण करछंती हृदय खोली जोटा कि आमे ग्रहण करिवार पात्र साजिवा दरकार भगवत धाम रे एठी जो कष्ट समस्त पाउछंती सेटा तांको हृदय रे निश्चय आंदोलित तो करूची से से चाहउछंती जे हम माने केमती उद्धार हो से विषय तो माने बहुत हाई लेवल रो कथा कि तांको इच्छा जोता तो मोर जहाँ पर्सनल रियलाइजेशन से जहाँ चाहउछंती सेटा ही चाहउछंती किंतु ताको परिवार उपाय भी तो सब तो से करि परिबेनी से ए क्लास माध्यम रे बा ए माध्यम रे केमती समस्त प्रोग्रेस करंतु सेटा चाहउछंती आपण भी सेटा चाहउछंती समस्त सेटा चाहउछंती तो यही पारुनी कलेक्टिव एफर्ट प्रॉपर न होबारु यही पारु Thank you. So we'll try our level best. Never say die. तो जिसका भी कुछ डाउट है क्वेश्चन आप शुरू कर सकते हैं एंड क्वेश्चन को डिस्कस करिए लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसमें we will also try to participate क्वेश्चन आंसर उसमें डिस्कस करना है तो जहाँ शुरू हुआ था गीता से या जो भी है दोबारा उसको डिस्कस करते हैं करके लोगों को बोलिए कि थोड़ा सा हम लोग भी खुद भी पढ़ें और उसके बाद में क्वेश्चन को अटेंड करें देयर आर नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ कोर्स रियलाइजेशन क्वेश्चन वाला तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन वाला आंसर तो डिफिकल्ट हो सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन टाइप वाला तो उतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए हम लोग डिटेल्स बाय लाइन पढ़े हैं इसमें ऑल थिंग्स भी लाइन बाय लाइन उसका भी हम लोग प्रेजेंटेशन फॉर्मेट कभी एंड दूसरा दिया है उसको क्वेश्चन को करने से भक्ति शास्त्री पाठ हो नहीं हो क्वेश्चन को करना है क्योंकि क्वेश्चन करने से हमको और थोड़ा पता चलेगा कहाँ पे हम लेखना है कहाँ हम समझा नहीं है कौन सा समझा नहीं है और क्या बाकी है समझाने के लिए थोड़ा सा वो आइडिया हो जाएगा और उसको फिर करना है फिर करके फिर पढ़ना है तो इसलिए क्वेश्चन इज रिक्वायरमेंट फॉर अपना अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए तो भक्ति शास्त्री यस ये पार्ट ऑफ दैट ये बट एक्चुअली उसमें मेन है कि क्वेश्चन आंसर करने से हमारा रियलाइजेशन बढ़ेगा हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा देन रियलाइजेशन बढ़ेगा तो इस टाइप का होगा हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन आंसर करना है अभी तो इसको करना है और देन फिर चाहने से फिर रिपीट हो सकता है लेकिन जब नेक्स्ट रिपीट होगा तो इतना डिटेल हम नहीं करेंगे हम जो सोच रहे हैं तो उसको कंसाइज करके करना है हो सकता है कि एक चैप्टर को एक दिन में भी हम कर सकते हैं बट उसको फिर कोपो कैसे करेंगे आपको सबको पढ़ना पड़ेगा आप नहीं पढ़ के बोलोगे फिर एक दिन में एक चैप्टर को हम पढ़ेंगे डिस्कस कर देंगे नहीं कर सकते हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरा कहना का है कि हम लोग जितना इनपुट देना है कोई भी दे रहा है हम भी इतना रिसीव करेंगे हमारा भी एक भक्ति बाइबल क्लास चलता है तो उनका जो बोलते हैं हम भी अरे वो जो क्लास में हो गया वही हो गया बाद में जाके पढ़ते नहीं है तो कैसे होगा तो देन वी कैन नॉट रिटेन दैट अमाउंट जितना हम कर सकते हैं तो ये इसीलिए सबका पास में टाइम का कांस्टेंट है डेफिनेटली ऑफिस है एंड ऑल थिंग्स आर देयर बट स्टिल देन उससे कुछ टाइम निकालना पड़ेगा हम तो सवेरे क्लास कर रहे हैं क्योंकि शाम को तो टाइम है सबका पास में थोड़ा सा तो उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको पढ़ाई कर सकते हैं उस टाइम में थोड़ा पढ़ के या दिन में भी कोई टाइम मिलता है किसी को तो उसको भी रिपीट करके उसको पढ़ना है
क्योंकि वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरा भी रिलेशन से कुछ जो विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम वी कैन नॉट डू दैट मच सर्विस एक्सेप्ट द प्योर डिवोटीज, उनका सेवा बढ़ता है, बट हम लोग का मेरा मैं बोल रहा हूँ नहीं हो पा रहा है। तो सवेरे क्लास, शाम को क्लास, दिन भर मैंने ऑफिस का चिंता रहता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, लोग डिफरेंट टाइप को लोग बिहेव करते हैं, उसको हैंडल करना है। कल भी इस तरह का मैं 2 लोग से थोड़ा सा अभी मुठभेड़ हो गया था। रात को एक ऑफिसर रेलवे का मेरा फ्रेंड है, वो कुछ लिखता है, कल बोलता है, मैं फिर रात को उसको मैसेज किया, आई एम ओपनिंग माई हार्ट। तो मतलब समटाइम्स सो मच डिस्टर्बेंस कमिंग फ्रॉम दिस सोसाइटी बिकॉज पीपल आर नॉट इन दैट लेवल। आपका थिंकिंग उसका थिंकिंग अलग है, स्पिरिचुअल पर्सन का थोड़ा सा जो लाइन में है उसका थिंकिंग और मेटेरियलिस्टिक पर्सन का थिंकिंग अलग है। और डीलिंग विद द मेटेरियलिस्टिक पीपल इन द डे टाइम इज आल्सो वेरी ब्रेन। आप जितना जो ज्यादा लोग से आप जुड़े हुए होंगे ऑफिस में, उसको डील करना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से बॉस का कुछ इंस्ट्रक्शन, नीचे से कुछ है, नीचे लोग कोऑपरेट उतना नहीं कर पाएंगे जितना आप चाहते हो। सो मेनी इश्यूज आर देयर, बट एनीवे फिर बाहर लोग से इंटरेक्शन है, तो जितना इंटरेक्शन है इसमें आपका बहुत एनर्जी ड्रेन होता है और माइंड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो समाव मैं तो कल फिर जाके शाम को क्लास किया, करने के बाद में तो रेस्ट लिया, 9 बजे तक क्लास हुआ, 8:49। उसके बाद में फिर भी हम लोग को जल्दी उठ के फिर मेरे को टायर्डनेस लगा, फिर हम आके फिर थोड़ा रेस्ट ले लिया। मतलब फिर क्लास करना है, इसके लिए वो जो बोले ना उस टाइप का इतना आसान नहीं है। तो उसमें फिर क्या है, वो कुछ प्रोग्राम है अटेंड करना है। वो दिल्ली भाई का घर में है 17th को शाम को, एवरीबॉडी हैज बीन इंटिमेटेड एंड अगेन आई एम जस्ट टेलिंग, कटक में उनका मैजेस्टिक टावर में छत का ऊपर में 17th को इवनिंग को प्रोग्राम है। तो माय प्रभु हैज गिवन कंसेंट टू बी प्रेजेंट देयर एंड everybody is requested to attend along with family members। तो 17 तारीख को इवनिंग को, तो उसके लिए भी कल से मैं उनका पीछे पड़ा हूँ, कहाँ से प्रसाद करना है। प्रभु के पास में गए थे हम, सैटरडे डिस्कस किए थे, वो भी 2 बार टाइम का चेंज किए थे, तो बिजी थे, फिर गए थे। कल से मैं फिर डिस्कस कर रहा हूँ किसी से, तो एक प्रोग्राम करने के लिए उनका हिसाब से फिर किसे बुलाओ, क्या करो, एंड उनका भी कुछ ओकेजन है, बट वो ओकेजन के चलते वो कर रहे हैं व्हाटएवर में भी। तो उसका कल बोला उनको, फोन भी बिजी थे, बोले बाद में करता हूँ। फिर जो जिसको ऑर्डर देना है वो बोला मैं बिजी रहता हूँ, मैं थोड़ा राज्य में जाऊंगा। तो नेक्स्ट बार ठीक है आप बोले तो कर देता हूँ, लेकिन फिर कल मुझे कितना आदमी का होना है, क्योंकि मैं जाने का पहले अरेंजमेंट करके कुछ आइटम खरीद के, मतलब सामान खरीद के रखूंगा ग्रोसरी। So that means by 17th program is there, but he is asking yesterday to give the number. Now the person who is arranging is also already in difficult situation, dilemma. वो 2 बार टाइम लेते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना आसानी में एक फैक्ट बता रहा हूँ। तो हम लोग सोचते हैं क्या यार एक दिन में प्रोग्राम होगा प्रसाद होगा, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा कि 5-7 दिन पहले भी बोलना पड़ता है, बिकॉज वो बीच में वो वक्त नहीं रहेंगे। कितना लोगों का लेके काम करना पड़ता है ना, वो आसान नहीं है। मैं कल सुबह फोन क्लास चल रहा था, वो फोन कर दिए, तो वो कितना आदमी का होगा, मैं मार्केटिंग करूँ। मेरे भैया रुको एक थोड़ा सा प्रभु जी, हम क्लास का बाद में, मैं फिर बिजी रह गया। फिर उनको फोन किया दोपहर में, वो फोन में बिजी है। फिर उसका मैंने थोड़ा बोला हाँ बोल रहा हूँ, बोले रात को मैं फोन किया उनको, रात को बोले मैं घर पहुंच के जाजपुर से आ रहा हूँ, घर पहुंच के बताता हूँ। फिर नहीं किया, फिर सवेरे मैंने फोन किया। तो 9 दिन नंबर उनका कितना हमारा कितना, उतना के लिए मेरे को कल 3 दिन भर चला गया, आई कुड नॉट गेट दिस नंबर। आज बोला ठीक है आप इसमें इतना कर दो, कह दो। फिर उसको फोन करके प्रभु को बोला, फिर उसका और भी कुछ एक डिवोटी ने दूसरा से कुछ कराना है, तो इसलिए इतना आसान नहीं है। और सबका एज का भी फैक्टर्स है। इतना लोग जो अगर सोच रहे हैं कि ये बहुत आसान से सब कुछ हो जाता है, इतना नहीं होता है। तो उसमें भी कल मेरा यहाँ से क्लास खत्म हुआ 8:30 में, 8:45 में निकल गया, क्योंकि ऑफिस जाके वहां से फिर जाना था कटक। मैं बोला थोड़ा पहले जाके, क्योंकि बॉस भी मंडे मीटिंग रखते हैं, रिव्यू करते हैं 3 बजे, कुछ पूछेगा पहले। तो फिर मैं गया 11:15 में, वहां जाके 12 बजे पहुंचा। वहां से जल्दी प्रसाद लेके फिर मैं बोला हाँ प्रभु मैं जाता हूँ, फिर मेरा मीटिंग होगा। फिर 2 बजे करीब आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर अराउंड 2 o'clock 1:50। यहाँ पे आके कुछ इशू है, घर का कुछ इशू था, उसको लिखना है, वो सही कुछ टाइल का प्रॉब्लम है, उसको देखो, ये करके 2:50 ऑफिस पहुंचो। फिर शाम को 6 बजे एक मीटिंग था डीसी में, 6 o'clock मीटिंग स्टेट गवर्नमेंट रखा था, उसको खत्म करते हुए 6:45 पे
7 o'clock यहाँ पे आके पहुंचा, 7:15 में दूसरा क्लास था, तो स्नान करके करना है। तो माइंड का ऊपर में जो प्रेशर चलता है वो उतना आसान नहीं है। फिजिकल काम कर लेगा, इजी है, बट थिंकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स, ट्राई टू एडजस्ट, ये सब करने में उम्र का साथ में बहुत इश्यू होता है। हमारे प्रभु इसलिए आप देखते होंगे, नहीं बचते हैं, वो तो क्लास करेंगे, ये करेंगे, जो है 2-4 दिन अगर करेंगे, फिर वो प्रॉपर रेस्ट लेते हैं। प्रॉपर मैं मार्क किया हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, नहीं तो ज्यादा दिन कंटिन्यू कर पाना मुश्किल होगा, इसलिए वो प्रॉपर रेस्ट लेंगे। और ये 15 दिन अगर मैं रामनवमी में करेंगे, उसका बाद प्रभु का तबीयत खराब हो जाता है। एवरी ईयर है मार्केट, तो क्योंकि कंटिन्यूअसली सेवा करना इतना, ये शरीर है ना, जड़ शरीर है, इतना हम लोग का इतना आसान नहीं है। इसका भी बहुत सारा जड़ शरीर का डिमांड्स भी बहुत सारा है यार। इट इज नॉट सो इजी पीपल। इसीलिए अपना भलाई के लिए हम लोग सीरियस हो जाएं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, समय सापेक्ष है सबका। अभी एज फैक्टर बढ़ गया, सेवा नहीं कर सकता। मैं मेरा रियलाइजेशन से बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट प्योर डिवोटीज, उसका सेवा बढ़ता है। एज का साथ में भी एज बढ़ने से सेवा भी कर सकते हैं, चैंटिंग, हियरिंग, ये सब बढ़ सकता है। हम लोग प्योर डिवोटी में मेरा बारे में बोल रहे है नहीं, इट वेरी डिफिकल्ट, इसको आसान नहीं है। लेकिन हाँ, गुरु कृष्ण कृपा से हम ट्राई मार रहे हैं, उनका कृपा से जो भी है ट्राई कर रहे हैं। जो एक सेवा मिला है उसको सिंसियरली करना चाहते हैं। तो ब्रीदिंग गैप नहीं रहता है, एंड ऑफिस 9:30, ये सब इतना आसान नहीं, 1000 चीज को देखना पड़ता है। इसको करिए सब सिंसियरली, अपना भलाई के लिए। पहले दूसरा का छोड़िए, अपना सोचिए, अपना कि हम कैसे बढ़ेंगे। हम जब तक अपना नहीं सोचेंगे, दूसरा का बारे में नहीं सोच सकते हैं। बी सीरियस, क्वेश्चन आंसर आपको करना है। आप क्वेश्चन आंसर मतलब क्या, एग्जाम हो नहीं हो, अनलेस अनटिल क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको रियलाइजेशन नहीं आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर लिखिए सब, और जो डाउट है अपना तरफ से पूछिए, क्या प्रॉब्लम है। बार बार बोलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बार बार बोलने के लिए रेडी है, डिस्कस करने के लिए रेडी है। भक्ति श्रीमती सिंधु तब तक एक बार इतना हो रहा है, फिर हम बीच से पूर्व इसका क्यों किया, फिर इसका जो समरी टाइप का फॉर्म में क्यों किया, क्योंकि इसका समरी फॉर्म में नहीं किया था, इसलिए फिर इसको समरी फॉर्म में थोड़ा सा कंसाइज करके डिस्कस कर रहा हूँ। और भी आगे भी कर सकते हैं इसको, तो बट ये देखिए, है ना। हरे कृष्ण, कॉल है, आई विल गिव द क्लास हियर। थैंक यू। पंचकृत।